Now moving to the next session, that is third session, I hand over the mic to Sonia ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Let's commence to our third session, and the topic is New Horizon in Marma Chikitsa. To conduct this session, I would like to introduce our session coordinator. Our one session coordinator is Dr. Prajakta Subhash Bodke ma'am. She is working as an associate professor in Department of Sahita Siddhant in MAD Ayurved College, Yeola, Nashik. For this session, our second session coordinator is Dr. Rahul Arsude sir, who is working as an associate professor in Department of Agat Tantra in Murlidhar Ayurved College, Rajkot, Gujarat. So I request to both the session coordinator to take the charge of session and please continue the session. Thank you very much, Sonia ma'am. Good morning, all of you. I am happy to welcome you all for session 3, that is New Horizons Marma Chikitsa. Actually, truly speaking, Marma Chikitsa, usually in the context of Marma, Marayanti iti Marmani, we have to, in the UG itself, we have learned that. बट यहाँ पर जैसे नवीन जोशी सर हम वी आर वेरी एक्चुअली लकी to have a distinguished speaker like Dr. Naveen Joshi sir. He will tell us Marayanti iti Marmani. It is a very limited idea about the Marma. How this knowledge can be utilized for the Chikitsa purpose. Also, we are very fortunate to have a chairman, Dr. Sudhir Kandekar sir, for this session, and as a co-chairman, Dr. Harshali Murade ma'am. So I request Dr. Prajakta madam to give a brief introduction about our chairman and co-chairman. Please, over to Prajakta ma'am. Prajakta ma'am. Hello, am I audible? Hello. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Thank you, sir. It gives me a great pleasure to introduce chairperson of this session, Dr. Sudhir Kandikar sir, and co-chairperson, Dr. Harshali Murade ma'am. Chairperson of this session, Dr. Sudhir Moreshwar Kandekar sir, who is MD Ayurveda in Rachna Sharir, and presently he is working as a principal at RT Ayurved Mahavidyalay, Akola, Maharashtra. Sir is the founder of Spine and Murmur Remediation Techniques, that is SMRT. Sir has practicing murmur therapy since last 20 years, through which thousands of people got relief from their various ailments. Several number of patients from various states of our nation as well as from the abroad have been taking advantage of this marvelous mode of treatment to get benefited. Dr. Kandekar sir having the academic experience of 23 years and administrative experience as HOD vice principal, officiating principal, medical superintendent at various institutes. Sir has achieved first best teacher award twice of year 2010-11 and year of 2011-12 in Rachna Sharir from Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Deemed University. Sir has received the second best teacher award of year 2009-10 in Rachna Sharir. Dr. Kandekar sir is a member of Board of Management, member of Academic Council, member of Board of Study, Preclinical Board, Interdisciplinary Medical Sciences, member of Examination Cell of Datta Meghe Institute of Medical Sciences, Deemed University. Sir is in charge of Ayurveda faculty, Earn While Learn courses. Sir is a member of Information and Communication Technology, President of Parent Teacher Association. Sir is having the research work also. That is 27 research articles are published in various national and international research journals. On social media, Dr. Kandekar sir having more than 60 articles regarding Ayurveda were published. Dr. Kandekar sir is an associate member of Royal Society of Health London. He is a life member of National Integrated Medical Association NIMA. He is a member of Ayurveda Teacher Association.
I welcome Dr. Kandekar sir. Now, co-chairperson of our session is Dr. Harshali Murade ma'am. Dr. Harshali Murade ma'am, who has completed her MD Ayurveda in Sanhita Siddhanta from R.A. Poddar Ayurved Medical College, Mumbai. She has completed her MA Sanskrit from Tilak Maharashtra Vidyapit, Pune, and BMS from Ashtang Ayurved Mahavidyalay, Pune. Ma'am is professor and HOD in Department of Sanskrit Sanhita Siddhanta at Government Ayurved College, Baramati. Her total teaching experience is 12 years. Total seminars are 12. Total article published are 10. Dr. Murade ma'am has delivered lectures on seminars and the conferences as a guest speaker, and she secured 5th rank in first BMS examination of MUHS. Welcome, ma'am, for this session as a co-chairperson. Now I request Dr. Rahul Arsude sir to give a brief introduction of our guest speaker, Dr. Naveen Joshi sir. Thank you, Prajakta ma'am. I will briefly introduce our respected Dr. Naveen Joshi sir. I think सर को इंट्रोडक्शन की कोई ज्यादा आवश्यकता ही नहीं है. सर यूजी, पीजी, पीएचडी, ऑल फैकल्टी ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, सर ऑलरेडी इतने फेमस हो चुके हैं रिगार्डिंग हिज वर्क ऑन नाड़ी एज ए नाड़ी वैद्य एंड मर्म चिकित्सा के लिए. फिर भी सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा. Respected Dr. Naveen Chandra Joshi sir is Associate Professor in Department of Sanskrit and Yoga at UAU, Dehradun. Naveen sir is having his specialty in Panchakarma, Yoga, Marma Therapy and Nadi Vignan. Sir having many articles published at national and international level. Also, he is a co-editor and co-author of many Ayurvedic books. Naveen sir is a master trainer of Marma Science and Therapy and conducted many workshops at national and international level. Also, his expertise as an Nadi Vaidya is well known to all. And particularly, I want to mention his contribution during lockdown period. Sir have enthusiastically and very actively preached Ayurveda to all through the social media like Facebook, Instagram. He have conducted many Zoom class, Zoom meetings, etc. And I request Dr. Naveen Joshi sir, please give your valuable guidance regarding this Marma Chikitsa to all of us. Thank you. Thank you to all the members. Am I audible to all of you? Yes sir, you are audible. धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे आमंत्रित किया. अगर आप मुझे लगता है स्क्रीन हटा दें तो बेहतर होगा. जी, एक्चुअली ये समय ओपीडी का है, तो मैं ओपीडी से ही आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ मर्म का. तो मैं पता नहीं, मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ. ये स्क्रीन आ रही है, इसमें उसको हटा दीजिए. जी हाँ, स्क्रीन को हटा देंगे तो अच्छा रहेगा. जी प्लीज स्टॉप. जी जी जी, थैंक यू, नमस्ते जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मैं आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन के सारे जो मेंबर्स हैं, मैं उन सब का आभार और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात बता सकूं. मैं मर्म विद्या पर आपको आज कुछ बताने जा रहा हूं और मर्म चिकित्सा के बारे में कुछ आपको बताऊंगा. वैसे तो मैं नाड़ी परीक्षण भी करता हूं और नाड़ी परीक्षा पे भी, जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन दिया गया, कि मैं नाड़ी परीक्षा पर भी सत्र लेता हूं और नाड़ी परीक्षा के बारे में भी लोगों को सिखाता हूं. लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे टीचर्स, फैकल्टीज मेंबर्स हैं जो जानना चाहेंगे कि मर्म विद्या क्या होती है और मर्म चिकित्सा कैसे की जाती है, तो मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगा. अब मुझे स्पॉटलाइट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि सभी लोग मुझे देख पाएं कि मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें आपको सिखाऊंगा. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे को स्पॉटलाइट कर दीजिएगा, है ना जी. हाँ, थैंक यू, धन्यवाद. तो देखिए, मर्म चिकित्सा जो है, ये हमारी, कहीं पर भी आप चरक सुश्रुत वाग्भट कहीं भी देखें तो चिकित्सा के नाम से मर्म का कहीं पर भी वर्णन नहीं आता. महर्षि सुश्रुत ने मर्म को मारयन्ती इति मर्माणि कहा है.
आचार्य चरक ने भी त्रिविध मर्म को बचाने के लिए बात कही है, मर्मानुपालित कहा है कि मर्म का अनुपालन कीजिए। लेकिन जब आप वैदिक विद्या देखते हैं, वैदिक चिकित्सा को जब आप देखते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि मर्म जो है वो अथर्वणी, आंगिरसी, देवी, मनुष्यजा, इनमें से जो हमारी आंगिरसी विद्या थी उसका ये एक पार्ट है। तो आंगिरसी विद्या का एक पार्ट रहा है मर्म, और ये विद्या एक अद्भुत विद्या रही है जिसे हजारों साल से लोग इसका प्रैक्टिस में प्रयोग करते रहे हैं। मेरी कोई पीपीटी नहीं है, इसलिए आप शेयर करने की टेंशन मत लीजिए, मैं सब एक्सटेम्पोर आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा। तो प्लीज स्क्रीन शेयर हटा लीजिए थोड़ी देर के लिए, और जैसा चल रहा था वैसे ही चलने दीजिए। जी, स्क्रीन शेयर को हटा लीजिए और स्पॉटलाइट करके रखिए। मैं सारा, ये स्क्रीन पे कुछ आ रहा है, शेयर हो रहा है। Yes, sir. Please, sir. हाँ, Please, whoever sharing the screen, please don't share any screen over here. प्लीज आप स्क्रीन शेयर मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एज इट इज रहने दीजिए। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल सिखाऊंगा और बताऊंगा कि मर्म क्या होता है और मर्म किस प्रकार से आता है। आप चाहें तो आप अपने पेन और नोटबुक और पेन रख लीजिए। तो महर्षि सुश्रुत ने 107 महर्षि सुश्रुत को क्रेडिट जाता है मर्म के बारे में डॉक्यूमेंट करने का, क्योंकि एक महर्षि सुश्रुत एक सर्जन थे। लेकिन अगर आप इतिहास देखें तो आंगिरसी विद्या या अंगन्यास हम सब देखते हैं हमारे यहाँ पूजा, या फिर इस प्रकार की हम लोग वैदिक रीति से यदि हम पूजा पाठ करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि हमारे आचार्य लोग यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, यहाँ टच करते हैं, फिर यहाँ करके ओम अस्त्राय फट करते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि ये ऐसा क्यों करते हैं। भगवान के सामने जाना है तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते हैं, भाई यहाँ टच करना, यहाँ टच करना, यहाँ टच करना, ये हिस्सा टच करना, फिर ये ओम अस्त्राय फट करना, क्या मतलब है इसका। तो देखा गया कि ये आंगिरसी यानी कि अंगन्यास की जो तरीके हैं, जिसे हम अंगन्यास कहते हैं, वो तरीके भगवान के सामने जाने से पहले अपने आप को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने के लिए वो तरीके हजारों साल से प्रयोग में आते रहे। हमने कभी उसको गौर नहीं किया। हमने सोचा कि ओम अस्त्राय फट करते हैं पंडित जी, तो इसका मतलब है शायद वो कुछ ऐसे करके ऐसे खींचते हैं यहाँ पे। हमने कभी नहीं सोचा कि ये किसी मर्म के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही दुर्गा सप्तशती एक की आप कवच कीलक पाठ करते हैं तो वहां पे एक सूत्र आता है, गुल्फयो मा नार सिंही च पाद पृष्ठे तो तेजसी पादांगुली सुरक्षेतु पाद अधस्तल वासिनी। यानी हे देवी दुर्गा, आप हमारे गुल्फ मर्म में निवास करो, हमारे पैर के तल में निवास करो, हमारे पैर की उंगलियों के बीच में निवास करो, और हमारे पैर के पीछे निवास करो। तो जब हम देखते हैं कि भाई पैर में देवी दुर्गा को अगर हम आह्वान कर रहे हैं तो फिर पैर में क्यों कर रहे हैं। प्लीज म्यूट रखिएगा माइक को, प्लीज 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 प्लीज। मैं जो हमारे यहाँ मॉडरेटर है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबकी माइक को म्यूट कर दीजिए। हाँ, प्लीज म्यूट कर दीजिए जी, क्योंकि मेरे सत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि अभी मेरा परिचय दिया गया, मैं कोविड से लेके अब तक मैंने हजारों लोगों को सिखा दिया है और मेरे नित्य ऑनलाइन सेशंस चलते रहते हैं। मैं 20 दिन में मर्म सिखाता हूँ, 20 दिन में नाड़ी सिखाता हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोगों के अंदर जागरण भी करता हूँ कि वो इस विद्या को सीखें। और अभी मैं जहाँ ओपीडी में बैठा हुआ हूँ, यहाँ 20 मरीज बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने गेट बंद कर दिया है और मैंने कहा है कि अभी रुक जाओ। तो मर्म की ओपीडी सबसे ज्यादा चलती है। तो आप सभी जो लोग टीचर हैं, काय चिकित्सा के हैं, या फिर आप शल्य तंत्र के हैं, या एनाटॉमी के हैं, आप मर्म जरूर सीखिए, इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो आंगिरसी विद्या का ये पार्ट रहा है, आंगिरसी विद्या और अंगन्यास से ये जुड़ता है मर्म हमारा। अगर मर्म स्थानों के नाम को देखें आप, महर्षि सुश्रुत ने मर्म के बारे में कहा कि मारयन्ति इति मर्माणि। लेकिन आप जब इनके नाम देखेंगे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि किसी का नाम अधिपति है, किसी का नाम सीमंत है, किसी का नाम विधुर है, किसी का नाम श्रृंगाटक है, किसी का नाम फणा है। जब यही कहना था कि ये मारियंती इति मर्माणी है, तो फिर नाम उसका अधिपति देने की जरूरत क्या थी, नाम उसे राजा बताने की जरूरत क्या थी। भाई मेरा नाम नवीन है तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम नवीन रखा है, इसका मीनिंग है कुछ कि मैं नित्य कुछ न कुछ नया इनोवेटिव करता हूं।
तो मर्म का नाम जब अधिपति है और केवल यही बताना था कि ये मारियंती इति मर्माणी है, तो फिर अधिपति नाम देने की जरूरत क्या थी? फिर तलहृदय नाम की देने की जरूरत क्या थी? फिर इंद्रवस्ती नाम देने की जरूरत क्या थी? तो जब इस पर विचार किया गया और हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे तमाम सारे शास्त्रकारों ने इस बात को जब देखा, तो पता चला कि इसके पीछे तो एक पूरी फार्माकोलॉजी है, इसके पीछे तो एक पूरी साइंस है। और ये साइंस जो है हमारी, ये पूरी की पूरी रिवर्स फार्माकोलॉजी पे बेस्ड है। रिवर्स फार्माकोलॉजी का मतलब ये है कि जिस मर्म स्थान पर आघात से जो दुष्परिणाम होते हैं, यदि उसी मर्म स्थान को आप जागृत करते हैं तो वही परिणाम मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिवर्स फार्माकोलॉजी। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको कुछ मर्म के बारे में। मैं आपको अभी आज 5 6 7 मर्म बताऊंगा जिसे आप निश्चित रूप से अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में आप इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। मैं मर्म को सिखाता ही नहीं, मर्म आपको बताता हूं और मर्म के बारे में आपको जगाता हूं। मेरा 16 जनवरी 2023 को, अभी जो मित्र मुझे ये जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे पढ़ाता था, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहूंगा, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि 16 जनवरी 2023 को मेरा एक भयंकर भीषण एक्सीडेंट हुआ और मैं एक हाइट से नीचे फॉल कर गया और मेरी L1 वर्टिब्रा मल्टीपल फ्रैक्चर हो गई। और उसके बाद 90% लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं और 90% लोग परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं और न्यूरोजेनिक ब्लैडर से सफर करते हैं। मैंने अपने आप को 6 महीने में पेन से और बाकी चीजों से रिकवर किया, तो उसके पीछे भगवान धन्वंतरी का तो ब्लेसिंग्स है ही, साथ में ये मर्म विद्या भी है। तो मैं आप सभी जो हमारे टीचर एसोसिएशन के जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको सीखिए, ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो मैं आपको कुछ सिर के मर्म बताता हूँ। देखिए, हमारे ये टॉप ऑफ द वर्टेक्स पे एक मर्म होता है, इसका नाम है अधिपति। इसका नाम है अधिपति, आप चाहें तो लिख लीजिए इसको। और ये अर्ध अंगुल प्रमाण का है। अब देखिए, महर्षि सुश्रुत के समय में तो बहुत मेजरमेंट के लिए कोई टेक्निक नहीं थी उस समय में, तो उस समय में अंगुल प्रमाण से ही नापा जाता था। और अगर आप इनके प्रभाव देखेंगे तो ये आग्नेय मर्म है, ये अर्ध अंगुल प्रमाण का है, ये संधि मर्म है अगर आप देखेंगे। और ये मर्म बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, इसे राजा कहते हैं, यानी ये राजा की तरह ही काम करता है अगर आप देखेंगे तो। और हम राजा के पास जाते हैं तो राजा का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा। हम लोग इसको 5 उंगलियों से स्टिमुलेट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप अभी वर्चुअली इसको कर सकते हैं। हालांकि इसका स्टिमुलेशन का जो टाइम है वो ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ हमारे यहाँ सुबह आप 4 से 6 बजे के बीच में इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये 5 उंगलियां आप ऐसे कीजिए, बनाइए, और आप सीधा सीधा इसको टॉप ऑफ द वर्टेक्स पे रखिए। आप मुझे देख पा रहे होंगे, क्लियर देख पा रहे होंगे। और आप इसको प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। जितने भी स्वस्थ लोग हैं उनके लिए ये 5 से 8 बार इसको स्टिमुलेशन देना है। और जितने भी बीमार लोग हैं, चाहे वो MND से पीड़ित हों, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंसोम्निया से पीड़ित हों, चाहे किसी प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर हो उनको, या फिर याददाश्त संबंधित समस्या हो, या जीवन में नकारात्मक भाव आते हों, उनके लिए ये 15 से 18 बार करना है। स्टिमुलेशन टाइम 0.8 सेकेंड होता है। आप भगवान को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, आप खुदा को मानते हैं तो अल्लाह अकबर बोल लीजिए, आप वाहे गुरु को मानते हैं तो आप वाहे गुरु की जय बोल लीजिए। आप कुछ भी बोले, 0.8 सेकेंड इसका स्टिमुलेशन टाइम होता है। और स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 8 बार और बीमार व्यक्ति में 15 से 18 बार आपने स्टिमुलेशन देना होता है। तो ये हमारा अधिपति नाम का मर्म है। अगर आप इसके अगर आप यहाँ पर कोई इंजरी देंगे, ज्यादा करेंगे, गलत टाइम पे करेंगे, तो ये मर्म खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये आग्नेय प्रकार का मर्म है। तो इसे एक हम लिमिटेड कैलकुलेटेड स्टिमुलस से ज्यादा नहीं देते हैं, ध्यान रखिएगा। लिमिटेड कैलकुलेटेड स्टिमुलस से ज्यादा नहीं देते हैं। और इसका करने का टाइम है ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो पहली बात। और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में नहीं करना है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है उनमें नहीं करना है। और आपने यहीं पर पिचु धारण भी कराते हैं, आप सब जानते हैं कि पंचकर्म में यहीं पर हम लोग पिचु धारण भी कराते हैं। तो ये अधिपति नाम का मर्म है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत ऐसे रोगियों में
प्लस अपने स्व मर्म उत्प्रेरण में, यानी आप सुबह सुबह उठिए 5 से 6 बजे और अपने 5 से 8 बार इस अधिपति मर्म को स्टिमुलेट कीजिए। कुछ प्रोटोकॉल्स आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आज बहुत सारे यहाँ पे लोग जुड़े होंगे। पहली बात तो मर्म करने वाले को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी मर्म स्थान का स्टिमुलेशन कर रहे हैं तो वो खाली पेट करना है, आपने ये भी ध्यान रखना है, भोजन के तत्काल बाद नहीं करना है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गर्भिणी में आपने मर्म स्थान का स्टिमुलेशन नहीं करना, नेवर डू मर्म स्टिमुलेशन इन प्रेगनेंसी। चौथी बात जो है वो आपने स्टैंडिंग पोजीशन पे नहीं करना है। तो 4 चीजें आप नोट कर लीजिए। पहला, गर्भावस्था में नहीं करना है, खड़े होके नहीं करना है, और जो आग्नेय मर्म है उन्हें सद्य प्राणहर मर्म कहा गया है, उन्हें आपने जो है वो ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या में ही करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त तो आपको समझ में आ गया होगा। त्रिकाल संध्या जो है वो संध्या का समय होता है जब हम शाम की आरती करते हैं, तो उस समय आप कर सकते हैं, उस समय ये मर्म कंफर्टेबली किए जा सकते। तो ये अधिपति हो गया। अब आइए, ये राजा है, दिस इज द किंग। यदि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी मान लें और अगर आप शरीर को भारत देश मान लें तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ये। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे पूरे देश में, शरीर रूपी देश में कोई भी काम आप करवा सकते हैं इससे। लेकिन अगर आपने इनको नाराज किया या आपने इनको आहत किया तो आपके शरीर के प्राण भी जा सकते हैं। तो जितने भी 19 मर्म हैं वो आग्नेय हैं, वो सब सद्य प्राण हर मर्म कहे हुए हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर शिखा रखने का, यहाँ पर चोटी रखने का, यहाँ पे पिचू धारण करने का, ये सब प्रावधान रहा है। लेकिन आप ये भी जानते होंगे जो राजा है वो अकेले तो काम करेगा नहीं। फिर राजा कैसे राजा हुआ फिर? नहीं, तो जब राजा है तो 5 मिनिस्टर्स भी हैं उसके साथ में, और वो मिनिस्टर्स जो हैं वो सीमंत नाम के मर्म हैं। तो मैं आपको मिनिस्टर्स भी दिखाता हूँ। तो आप सब जानते हैं कि ये कोरोना से कोरोनल सूचर बना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कोरोनल सूचर है। देखिए आप सबको दिख रहा होगा। और ये बीच में हमारा जो स्कल को डिवाइड करता है ये सजाइटल सूचर है। और जो ये पीछे देखेंगे आप बैक साइड में, ये बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये लैम्डोइडल सूचर है। तो देखिए आप, ये कोरोनल सूचर, ये सजाइटल सूचर, और ये पीछे लैम्डोइडल सूचर। ठीक है, कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर और लैम्डोइडल सूचर। तो कोरोनल पे 2 मर्म होते हैं। देखिए यहाँ पे कितने होते हैं, देखिए मैं नजदीक से दिखा रहा हूँ, ये 2 मर्म है। टॉप ऑफ द वर्टेक्स पे तो अधिपति है, उसके ठीक सामने एक मर्म यहाँ पे है। तो 1, 2 और 3 ये हो गया, और पीछे 2 मर्म लैम्डोइडल सूचर पे हैं। कुल 5 मर्म होते हैं। हजारों साल पहले इनका नाम सीमंत दिया गया है। सीमंत का अर्थ होता है जोड़ने वाला, कम्युनिकेशन बनाने वाला। किससे कम्युनिकेशन बनाता है? तो ये मर्म अधिपति से कम्युनिकेशन बनाता है। तो हम यूं कहें कि अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो उनके 5 कैबिनेट टॉप मिनिस्टर्स जो हैं वो सीमंत वर्ग के रूप में हैं। ऐसा कहा गया है कि जैसा बाहर ब्रह्मांड में है वैसा ही इस पिंड शरीर में है। तो जो बाहर सत्ता चलती है ऐसे ही हमारे शरीर में भी सिस्टम्स चलते हैं। तो ये मर्म स्थान के बारे में अगर आप जानना चाहें तो मर्म स्थान की परिभाषा क्या है, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। तो कहते हैं जहां मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि का सन्निपात होता है, मिलते हैं, और जहां पर प्राण का निवास होता है वो स्थान मर्म स्थान कहलाते हैं। ये माना जाता है कि हमारे शरीर में प्राण निरंतर गतिमान है और उसी की ऊर्जा से हम सारे कार्य कर रहे हैं। यदि हमारे शरीर में प्राण ही नहीं है तो हम मृत हैं, तो वहां मर्मों की कल्पना भी नहीं की जाती। तो ये सबसे टॉप पे स्थित हमारा अधिपति मर्म। और 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सीमंत मर्म। तो अब आप कहेंगे सर अधिपति को तो आपने ऐसे बताया, सीमंत मर्म को कैसे जागृत करेंगे? तो चलिए आप कीजिए। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं पर मुझे आप शायद देख पा रहे होंगे, और मेरे साथ आप करेंगे। तो आपने क्या करना है, ये दोनों अपने हाइपोथिनर एमिनेंस को यहाँ लगाइए, आईब्रो के एंड पे चलिए लगाइए। और ये देखिए आपने ऐसे सर पकड़ लेना है। हाँ, ऐसे सर पकड़िए। और देखिए ये 5 उंगलियां आपने ऐसे लगानी है। देखिए आप लगाइए आपने। अब ये हाइपोथिनर एमिनेंस से लेकर के ये 5 उंगलियों को आपने इस प्रकार से दबाना है, प्रेस कीजिए। 1, 2, ये पूरा प्रेशर भी रहेगा। और ध्यान रखिएगा नाखून कटे होने चाहिए, है ना।
मर्म करने वाले का पहले तो नाखून कटा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 बार करा आपने। और अगर आप स्वस्थ हैं तो आप 5 बार बहुत है आपके लिए, 5 बार करिए, 5 से 8 बार। बीमार है तो 15 से 18 बार आपको ये मर्म करने हैं। ये सीमंत मर्म है। जो इनके प्रभाव हैं ये अधिपति के ही तरह के हैं, अधिपति जैसा काम करता है वैसा ही सीमंत करता है। फिर राजा है ना, तो राजा को हेल्प करने वाले हैं, तो ये भी वही काम करते हैं। ये हमारे आपके पीनियल ग्लैंड पे काम करते हैं, ये हमारे पूरे का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। ये हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है इस पे शरीर में लाना, संचरण करना, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम्स में, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स में, आप देखेंगे रिकरेंट हेडेक होता है बहुत तरह का, उन सब में इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। तो ये सीमंत मर्म है, ये सौम्य आग्नेय होते हैं। और ये अगर आपने इस पे इंजरी दी तो ये तुरंत तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ये फॉर द टाइम, 1 सप्ताह बाद, 14 दिन बाद ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसे कालांतर प्राण हर मर्म कहा गया है। हर मर्म का अपना एक नेचर है, जैसा मैंने अधिपति का बताया, ये आग्नेय है। तो ये सीमंत जो है ये संधि मर्म है और ये सौम्य आग्नेय है। तो ये उतना ज्यादा डेंजरस तो नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, पर इसको भी प्रोटोकॉल अधिपति के बराबर ही आपने देना है, यानी इसका भी प्रोटोकॉल अधिपति से कम नहीं रहेगा। तो ये सीमंत हो गया। ये अंग्रेजी का शब्द है सीमंत, जो हजारों साल पहले इसका प्रयोग में आया है, और इसी से जोड़ना इसका अर्थ है, यानी कि कम्युनिकेशन बिटवीन द अधिपति एंड सीमंत टू टू हम कह सकते हैं कि फॉर द न्यूरोलॉजिकल इनहेंसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के न्यूरोलॉजिकल इनहेंसमेंट के लिए ये कम्युनिकेशन बनाता है अधिपति और सीमंत के बीच में। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड मर्म एरिया, एंड आई थिंक दैट द पीपल शुड हैव टू स्टिमुलेट दिस मर्मा फॉर देयर बेनिफिट्स। तो अपने बेनिफिट के लिए आपको इस मर्म का स्टिमुलेशन देना चाहिए। आप इसे रोज कर सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के खाली पेट आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा प्रोटोकॉल एक ही है, नेवर डू मर्मा स्टिमुलेशन इन प्रेगनेंसी, avoid the murmur stimulation during the menstrual period time, and avoid the murmur stimulation during the standing position, and you should have to be very careful that your energy should be positive। यदि आप खुद नकारात्मक हैं, आप खुद नेगेटिव हैं, तो आप कितने भी आप मर्म स्टिमुलेशन कर लीजिए, आपको फायदा नहीं होने वाला। इसका अर्थ यह है कि आपको अपने आचार विचार और व्यवहार में साम्यता और जिसे कहते हैं कि एक सौम्यता और एक सत्वता लानी जरूरी है, जितना आप प्रयास कर सके। यानी समय पर सोना है, समय पर उठना है, भोजन जो है वो ढंग से लेना है, आदि आदि प्रोटोकॉल्स जो है एक मर्म विद्या की प्रैक्टिशनर्स को अपने जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बताना मैं शायद भूल गया, कई बार मर्म स्टिमुलेशन देने से जो व्यक्ति मर्म देता है उसमें नेगेटिविटी आती है, क्योंकि पेशेंट हमेशा नेगेटिव एनर्जी लेके आता है, तो आपके अंदर भी चांसेस होते हैं कि आप नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रुद्राक्ष, यानी कि हमको रुद्राक्ष की जो हमारे फल होते हैं उसके बीज को हम आसपास रखें, रुद्राक्ष की माला रखें, तो उससे नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है और आपको बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक तो ये सीमंत मर्म आपने जान लिया, तो पहला अधिपति जान लिया, 5 आपने सीमंत जान लिया। तो अब देखिए राजा है, राजा के 5 मंत्री हैं, तो उन्होंने और भी व्यवस्थाएं बनाई है हमारे शरीर में। ये कान के नीचे देखिए आप, ये कान के नीचे देखिए आप, चलिए अपने अपने कान के नीचे इस प्रकार से आप देखिए, ये जो हमारा मेस्टोइड प्रोसेस है ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ये हमारा जो मेस्टोइड प्रोसेस है, ये देखिए आप यहाँ पे ऊपर अंगूठा लगाएंगे तो आप एक क्लिक की आवाज आएगी, देखिए आप। चलिए यहाँ पे अंगूठा लगाइए। पुराने जमाने में जब गुरुजी हमको सजा देते थे तो हम लोग जो है वो कान पकड़ते थे और उठक बैठक करते थे, मुर्गा बनाते थे। जो मुर्गा बनाते थे हमारे गुरुजी लोग, वो सारे मर्मों का स्टिमुलेशन हो जाता था। पर शायद हमने मुर्गा बनना छोड़ दिया, आजकल की तारीख में वो एक परंपरा जो गुरु शिष्य के बीच में थी पनिशमेंट देने की, वो शायद चली गई। लेकिन कान पकड़ना जो है चाहिए आपको कभी कभी, क्योंकि भगवान के आगे भी आप अगर आप नतमस्तक होते हैं, कान पकड़ते हैं, तो उसका आपको कहीं ना कहीं आप अपनी प्रायश्चित करते ही करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इंसान है तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। तो ये विदुर नाम का मर्म है। देखिए अपना अंगूठा ऐसे सीधा रखिए और इसको इस नीचे वाले पॉइंट पर लगाइए और इसको ऊपर की तरफ ऐसे दबाइए, छोड़िए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए।
प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए, प्रेस कीजिए, रिलीज कीजिए। ये जो है स्नायु मर्म है और इसका नाम विधुर है। ये हमारे ऑडिटरी सिस्टम पर इसका प्रभाव है। ये हमारे बैलेंसिंग को भी ठीक करता है, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन पर काम करता है। स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन पर ये काम करता है। कलरी में इसी पॉइंट को इंजर्ड करके बैलेंसिंग को लूज कराया जाता है। वो जो मार्शल आर्ट की टेक्निक है जिसे कलरी पट्टू कहते हैं, उसमें इसी पॉइंट पर इंजरी हिट करके बैलेंसिंग को लूज करा के सामने वाले को धराशायी कर दिया जाता है। लेकिन ये मर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये पयस्विनी और संखिनी नाम की नाड़ी दो निकलती है यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो दाहिनी तरफ से पयस्विनी और बाईं तरफ से संखिनी नाम की नाड़ी निकलती है और ये नाड़ी यहाँ से निकल के हमारी ये ठीक हमारे श्रृंगाटक के पास जाती है और यहाँ से ये सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाती है। तो पयस्विनी अब शायद ये मुझे लगता है कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के लिए या फिर कॉक्लिया के लिए ये शब्द पुराने जमाने में सोचा गया होगा और ये बैलेंसिंग और ऑडिटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जिनका पूरा एकॉस्टिक सिस्टम ही डैमेज हो चुका है उसको इम्प्रूव कर देगा, पर जिनको थोड़ी बहुत ऑडिटरी प्रॉब्लम है, सुनने में दिक्कत है या फिर जिसको कहते हैं ना ऑडिटरी इनहेंसमेंट, जो लोग इक्विपमेंट्स लेते हैं, सुनने में ऊंचा सुनते हैं, उनके लिए बहुत ब्यूटीफुल काम करता है। बैलेंसिंग भी अच्छा करता है ये। विधुर मर्म इसका नाम है। तो हम यूं कहें कि हमारे भगवान ने, ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था भी करी है जिससे हमें बाहर की सूचनाएं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ब्रेन के पास जाती रहे। यूं कहें कि अधिपति और सीमंत यदि राजा और उसके मंत्री हैं तो हमारे शरीर में एक व्यवस्था ये भी है कि बाहर जो संवेदनाएं आ रही हैं, ठीक है कोई नहीं, हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है इसको बंद कर दीजिएगा, ऐसी डेटा लगा दीजिए इसको। तो ये जो है ये हमारा बैलेंसिंग मेंटेन करता है, हमारी ऑडिटरी इनहेंसमेंट करता है, ये हमारे सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये विधुर नाम का मर्म है। आप इसे इस प्रकार से स्टिमुलेट कर सकते हैं, यू कैन स्टिमुलेट लाइक दिस। ये इस प्रकार से 5 से 8 बार करके देखिए आप, बड़ा आनंद आएगा आपको, एंजॉय करेंगे आप। अगर आप अपना कैमरा ऑन करें तो आप, मैं देख भी सकता हूँ आपको। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आप देख सकते हैं। जी, मैं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, आई विल गिव यू द रिप्लाई। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन आपका ले लेंगे। तो ये विधुर नाम का मर्म है। अब देखिए इसके बाद जो मर्म है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपना टाइम भी देख रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे में समाप्त करूंगा। 12:37 हुए हैं, तो मैं 10 मिनट में आपको ये 10 से 15 मिनट में और भी बार बता के सेशन को समाप्त करूंगा कि बहुत सारे पेशेंट्स बाहर वेट कर रहे हैं। मैंने दरवाजा बंद किया हुआ है। तो ये देखिए आप, ध्रुवो अंतरो रूपरी कर्ण ललाटो मध्य संखो तत्र सद्यो मरणम। कहा कि भौं के अंत में और कर्ण ललाट के मध्य में जो मर्म स्थान है ये शंख मर्म है। देखिए आप, ये देखिए आप, ध्रुवो अंतरो रूपरी कर्ण ललाटो मध्य शंखो, इसको शंख कहा गया है। और इधर से भी देखिए आप, ये देखिए आप इधर से, ये तो भौं के अंत में और कर्ण ललाट के मध्य में जो मर्म है इसे शंख मर्म कहा गया है। और महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि ये शब्द प्राणहर है। ध्रुवो अंतरो रूपणी कर्ण ललाटो मध्य शंखो तत्र सद्यो मरणम, ये सद्य प्राणहर मर्म है ना। तो जितना जो मर्म खतरनाक बताया गया है वो मर्म उतना ही प्रभावी है अगर आप देखेंगे तो ये शंख मर्म के बारे में कहा गया ये आग्नेय मर्म है। और ये जितने भी आग्नेय मर्म है या सद्य प्राणहर मर्म है, ये अस्थि पर आधारित है। टेम्पल नाम की हड्डी पर है तो अस्थि मर्म है, अर्ध अंगुल प्रमाण का है। और इसका जो प्रभाव अगर आप देखेंगे तो कई बार अपान वायु ऊपर की तरफ आती है, आपने देखा होगा, और हमें सिरहसूल होता है। आपने देखा होगा कि हम वॉमिट करते हैं तो वो अपान वायु ठीक से फिर प्रतिलोमित अनुलोमित हो जाती है, जो प्रतिलोमित हो गई है। तो बहुत प्राचीन काल से ही हमारी दादी नानी वगैरह जो थी वो इस पॉइंट पर हम प्रेस करते थे, आपने देखा होगा। आप इस प्रकार से खुद भी करते थे, शायद करते रहे होंगे आप कई बार, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हमारा शंख नाम का मर्म है। तो शंख मर्म का प्रभाव जो है ये अपान वायु को नीचे के डायरेक्शन में ले जाना है, यानी अपान वायु जो प्रतिलोमित हो गई है उसको अनुलोम करना है, क्योंकि हर वायु का अपना स्थान है। भाई अपान वायु का काम है नीचे जाना, तो मूत्र
जो हमारी मूत्र की प्रवृत्ति है, हमारी आर्तव की प्रवृत्ति है, हमारी मल की प्रवृत्ति है, हमारे शरीर में जो भी हम गर्भ की प्रवृत्ति है, इन सब के लिए अपान वायु जिम्मेदार होती है। तो नेचुरली जब ये अपान वायु को अनुलोमित करेगा तो ऑटोमेटिकली ये जो इस पर इसका प्रभाव आएगा। तो आप देखते हैं जैसे आप शंख मर्म करते हैं गैस पास हो जाती है, शंख मर्म करते हैं तो यूरिन पास हो जाता है। हम लोग एनोरेक्टल केसेस में बहुत बार ऐसा होता था जब थ्रेड को बांधते थे तो पेशाब रुक जाता था, हाँ एकदम पेशेंट को ऑब्स्टिपेशन होता था। तो ऐसे में हम शंख मर्म कराते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो इस मर्म का प्रभाव अपान वायु पर है। तो अब आप समझ सकते हैं, आप सभी लोग चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, अपान वायु के कर्म जो बिगड़े हुए हैं उन सबको करेक्ट करने में इस मर्म का स्थान है। लेकिन यही मर्म अगर यहाँ पर इंजरी दे दी जाएगी तो आपको शायद पता होगा, रमन लांबा एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे जो 90 के दशक में क्रिकेट क्या उभरते हुए सितारे थे। एक बॉल आई और यहाँ लग गई और उनकी वहीं पर समझ लीजिए कि ग्राउंड पे ही उनकी डेथ हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आग्नेय मर्म है तो सद्य प्राणहर होता ही होता है, वो सद्य प्राणहर होता ही होता है। तो ये आपने शंख मर्म देखा। अब इसके बाद मैं आपको अपांग मर्म दिखाता हूं। देखिए, तो आपने अधिपति 1, 5 सीमंत, 2 विधुर, 2 शंख, और अब आपको 2 अपांग बताता हूं। ये आईब्रो है और आईब्रो के एंड पर आप देखेंगे तो इसे अपांग संधि बोलते हैं। तो अपांग संधि पर स्थित ये शिरा मर्म है। ध्यान रखिएगा, मर्मों के क्लासिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपने अधिपति को संधि मर्म देखा, सूचर्स पे है, सीमंत सूचर्स पे है, विधुर को स्नायु मर्म देखा, शंख जो था अस्थि मर्म था, पर अपांग जो है वह संधि पर होते हुए भी शिरा मर्म है। तो ये शिरा मर्म है, अर्धअंगुल प्रमाण का है। इसका जो प्रभाव है ये भी सौम्य है, यानी जल महाभूत प्रधान मर्म है और वैकल्यकर है। जितने भी मर्म आग्नेय होते हैं वो सद्य प्राणहर होते हैं, जितने भी आपको मर्म सौम्य आग्नेय होते हैं वो कालांतर प्राणहर मर्म होते हैं, जितने भी मर्म सौम्य होते हैं वो वैकल्यकर होते हैं, जितने भी मर्म वायु अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं वो विशेषकर रुजाकर होते हैं, और जितने वायु महाभूत प्रधान होते हैं वो जनरली हम उसे विषय लग्न मर्म कहते हैं। तो ये अपांग नाम का जो मर्म है ये वैकल्यकर मर्म है। वैकल्य का अर्थ होता है विकलता पैदा करना, यानी डिसेबिलिटी कॉजिंग मर्म हम कह सकते हैं इसे। लेकिन ये चूंकि हमारे आईब्रोज के एंड पे है, और जो हमारी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये पूरा का पूरा ऑप्टिक एरिया है उस एरिया के ये कॉर्नर पर स्थित है, तो ये बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव हमारे विजुअल एक्विटेंस पे है। हम लोग स्क्विंट में बहुत अच्छा प्रभाव देखते हैं इससे। रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक करने में इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। हम बहुत सारे लोग में इंटरमिटेंटली नॉन ऑडिबल, अच्छा ऑडिबल बीच बीच में गड़बड़ हो रहा है क्या? बीच बीच में मेरी आवाज चली जा रही है क्या? No, sir, you are audible. It's their network issues, sir. You continue your session, sir. जी 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 जी, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। तो ये अपांग नाम का जो मर्म है ये दृष्टि पे काम करता है, विजन पे काम करता है। आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने जो हम लोग जो पंचकर्म में हम लोग अक्षित अर्पण करते हैं तो उसमें भी इस मर्म स्थान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जो पिचु धारण कराते हैं उसमें अधिपति मर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग शिरोबस्ती करते हैं उसमें इस मर्म स्थान सीमंत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग जनेऊ धारण करते हैं तो विदुर मर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग कर्ण वेदन करते हैं तो विदुर मर्म का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। शंख मर्म का इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको समझाया अभी। अपान क्षेत्र पर बहुत अच्छा काम करता है, और अपांग मर्म जो मैं आपको बता रहा था ये बहुत अच्छा काम करता है। ये स्क्विंट है, रिफ्रैक्टिव एरर्स है, बहुत सारे ऐसे जो हम कह, अब जिसका पूरा का पूरा ऑप्टिक सिस्टम ही डैमेज हो गया उसकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारे विजन को लॉन्ग टर्म तक, प्रोलॉन्ग टर्म तक ठीक रखने के लिए ये बढ़िया काम करता है। जी, कुछ पूछना है? तो एक वो जो इसमें अगली टाइप कर रहे थे, हाँ हाँ, इसमें छूना कब लगा? बाद में लगा दीजिए चुना। तो अभी हमने एक बार तो कर दिया। हाँ, एक क्लास चल रही है, मैं एक लेक्चर आता हूँ मैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये हमारे जो रिफ्रैक्टिव एरर्स है इस पे काम करता है। तो हम लोग अक्षि तर्पण करते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। आपको बताऊं कि जो विद्ध कर्म होता है वो भी मर्म स्थान के आसपास ही होता है और बड़ा अच्छे रिजल्ट्स देता है वो। लेकिन हम ये कहते हैं कि विद्ध कर्म तो आप जाने न जाने, लेकिन ये नॉन इन्वेजिव, नॉन पेनफुल, यूनिवर्सली सस्टेनेबल, दुनिया के किसी भी कोने में जाएं आप, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है बर्न को करने में, क्योंकि आप ना किसी को पेन दे रहे हैं, ना किसी को इन्वेजन दे रहे हैं, ना किसी को आप मेडिसिन दे रहे हैं। और इसके प्रभाव बहुत जबरदस्त हैं, बहुत जबरदस्त है। मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद इसका प्रयोग कर करके आज आपके सामने इस लेक्चर को लेने लायक बना हूं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसकी L1 वर्टिब्रा कई हिस्सों में टूट गई हो और स्पाइनल इंजरी सीवियर हुई हो, मॉडर्न मेडिसिन की सर्जरी, मेरे पूरे पीछे पीठ पर इम्प्लांट लगा हुआ है, 90% ऑफ द केसेस पैरालाइज हो जाते हैं या फिर जीवन भर कैथेटर लेके चलते हैं। मैं आपके सामने अभी यहाँ पर बकायदा आपको दिख रहा हूं। मैं अगर बताता नहीं तो आप शायद जानते भी नहीं कि मैं इस तरह की इंजरी से रिकवर हो चुका हूं, और इसके पीछे आयुर्वेद और मर्म का योगदान है। इसके पीछे आपके जैसे बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने सिखाया है, उनकी भी ब्लेसिंग से और गॉड की ब्लेसिंग से शायद वो चाहता है कि मैं इस ज्ञान को और ज्यादा प्रचारित और प्रसारित करूं। शायद इसीलिए उसने मुझे 23 जनवरी 2023 के बाद इस दुनिया में जिंदा रखा है। तो इसके पीछे मर्म ही एक कारण है, मैं इसे मानता हूं, और आयुर्वेद एक कारण है। इसके बाद आते हैं हम, ये अपांग मर्म था। क्योंकि मैं आपको सिर के मर्म कंप्लीट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स हैं और चूंकि यहाँ पे अग्निकर्म भी हो रहा होगा, अभी मुझे बुला रहे थे वो, मैंने आपसे टाइम लिया है 10 मिनट और मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है हमारा स्थपनी नाम का मर्म। नहीं, हम लोग सुबह तिलक लगाते हैं, हम लोग ऐसे करके यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, है नहीं, हम लोग तिलक लगाते हैं, तो ये स्थपनी है। अब नाम देखिए कितना बढ़िया है इसका, स्थपनी। हर मर्म का आप नाम गौर से देखिए, किसी को राजा कहा गया, किसी को विधुर कहा गया, किसी को अपांग कहा गया, नहीं, किसी को शंख कहा गया, किसी को सीमंत कहा गया, किसी को स्थपनी कहा गया। स्थपनी का अर्थ होता है जो स्टैब्लिश करे, स्थापित करे। कई बार हम लोग बहुत सारे ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाते, बच्चे होते हैं, कई बार क्या करना है कैरियर नहीं चुन पाते, हम लोग क्या करना है नहीं करना है इस कुहापोह में रहते हैं कई बार। तो हमारे आचार्यों ने हजारों साल पहले इसके लिए ये जो हमारा आज्ञा चक्र है इस पर स्थित स्थपनी मर्म बताया। स्थपनी मर्म पर ही हम लोग, ये ग्लैबेला पे होता है दोनों आईब्रोज के बीच में। और आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कान के विधुर मर्म से निकलने वाली पयस्विनी, संखिनी, जो आंख के ये अपांग मर्म से निकलने वाली पुषा और गंधरी नाम की नाड़ी, ये सारी नाड़ियां यहाँ जाके, जो हमारी एड़ा पिंगला, ये सब यहीं जाके सुषुम्ना नाड़ी में मिल जाती हैं। कहते हैं कि जिसका स्थपनी मर्म जागृत हो जाए, मेरा नहीं है जागृत, था और मेरा उद्देश्य भी नहीं है इसको जागृत आपको करवाना, लेकिन कहते हैं कि वो व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। वो व्यक्ति वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में जानने लगता है। वो व्यक्ति किसी की बगैर नाड़ी देखे हुए नाड़ी की परीक्षा कर सकता है, नाड़ी को जान सकता है, नाड़ी को समझ सकता है, जिसे स्थपनी नाम का मर्म कहा गया। तो यदि इसे आप हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी मानते हैं, और ये 5 सीमंत मर्म को यदि आप राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण मानते हैं, यदि आप विदुर मर्म को हमारा जो है आकाशवाणी प्रसार भारती मानते हैं, यदि आप हमारे शंख मर्म को सेंट्रल विस्टा मानते हैं जहाँ सारे लोग आके बैठ के चर्चा करते हैं, यदि आप हमारे अपांग मर्म को दूरदर्शन मानते हैं जो देखने का हमारा काम करता है और इंफॉर्मेशन हमारे अधिपति को पहुंचाता है, तो ये स्थपनी नाम का मर्म ये डिसीजन मेकिंग मर्म है। यानी आप इसे यूं कह सकते हैं कि हमारे देश के अजीत डोभाल साहब है ये, जो सारी पॉलिसी बनाते हैं। तो ये हमारा कंट्रोलिंग सेंटर है जो हमारे शरीर की सारी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज को, पॉलिसीज को डिसिसिव बनाने के लिए ये मर्म बहुत बढ़िया है। तो आपने कैसे स्टिमुलेट करना है, ऐसे बनाइए। चलिए अंगूठा फोड़िए। देखिए मैं एक क्लिनिशियन हूँ, आई एम नॉट बेसिकली, आई एम अ टीचर, बट बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो पढ़ाते भी हैं और पेशेंट्स भी देखते हैं। मैं पंचकर्म भी करता हूँ, मैं क्षार सूत्र भी करता हूँ, मैं मर्म भी करता हूँ, और हमारे पेशेंट सुबह से ही नाड़ी दिखवाने के लिए यहाँ बैठते हैं। तो ये हम बेसिकली तो हम चिकित्सक ही है ना, हमने तो डिग्री आयुर्वेदाचार्य के लिए। तो आप देखिए इसको ऐसे मोड़िए,
ऐसे मोड़िए और ये नकल बनाइए। देखिए देखिए कितना मजा आएगा अभी। देखिए मैंने कोई पीपीटी नहीं देता हूं मैं कहीं भी, मैं सीधा प्रैक्टिकल। और यहाँ लगाइए ऐसे और इसको ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देखिए आप, ये देखिए ऐसा नकल बनाइए, ये देखिए ऐसा नकल बनाइए ये। और इसको यूं 1 2 3 4 5, 5 बार। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रिकॉलिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। ये विषल्लग्न मर्म है, 3 मर्म विषल्लग्न है, 2 उत्क्षेप और एक स्तंभनी। विषल्लग्न का अर्थ होता है यदि शल्य इसके अंदर चला जाता है तो इसके अंदर रुकी हुई वायु जो है, अगर आपने शल्य को बाहर निकाल दिया तो इसके अंदर रुकी हुई वायु बाहर निकल जाती है और व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ हो जाती है। हमारे शास्त्र में श्रवण कुमार एक कैरेक्टर है जो बड़े ही अपने माता पिता के प्रति बड़े ही ओबीडियंट थे। तो भगवान जो श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके जा रहे थे तीर्थ यात्रा करने के लिए, माता पिता दोनों अंधे थे। तो श्रवण कुमार जी ने जो है वो उनकी डोली को साइड में रखा और दशरथ जी उस समय शिकार करने जा रहे थे। तो दशरथ जी को ऐसा लगा कि श्रवण कुमार को उनके माता पिता ने कहा कि बेटा हमको जो है वो प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी ला दो। तो श्रवण कुमार जी पानी लेने के लिए गए। उस समय में राजा लोग शिकार बड़े करते थे और आवाज सुन के तीर चलाते थे। तो दशरथ जी ने जो है वो ऐसा लगा उनको कि कोई जो है हरण जो है वो पानी पी रहा है। तो उन्होंने जो है साउंड सुन के तीर लगा दी और तीर कट से यहाँ जाके लग गया श्रवण कुमार की। अब जब कराहने लगे श्रवण कुमार तो दशरथ जी को लगा कि यार ये तो हिरण की जगह किसी इंसान को लग गई है तीर। तो वो गए वहां पे और उन्होंने हड़बड़ाहट में वो तीर बाहर निकाल दिया। यदि वो तीर पड़ा रहता अंदर तो शायद श्रवण कुमार की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इस मर्म को विषल्लग्न मर्म कहा गया है। शल्य पड़ा हुआ है तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, और अगर शल्य निकाल दिया गया तो जो अंदर स्थित वायु है वो बाहर निकल जाती है और व्यक्ति की इमीडिएटली डेथ हो जाती। तो ये विषल्यग्न नाम का मर्म है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक औषधि आती है जिसको संजीवनी कुल में रखा गया है, इसका नाम ही विशल्यकर्णी है। इस औषधि का लेप कर दें अगर ऐसे कहीं पर भी शल्य है तो वो शल्य अपने आप बाहर आ जाता है, निकालने की जरूरत नहीं है। और इसे संजीवनी कुल की 5 औषधियों में से एक औषधि माना गया है। तो ये स्थपनी नाम का मर्म। तो आपको अजीत डोभाल साहब से भी मुलाकात हो गई आपकी। नहीं तो अगर आप हमारे शरीर को देश माने तो देश की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली पे हमारे मोदी जी और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमारा आकाशवाणी, हमारा सेंट्रल विस्टा, हमारा जो है दूरदर्शन, हमारा जो है वो डिसीजन मेकिंग डोभाल साहब, ये सब। तो सर जी दिल्ली में और भी तो कोई बैठते हैं ना, दिल्ली तो राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो जी हाँ, श्रृंगाटक नाम का मर्म है, 4 मर्म होते हैं ये। जी हाँ, और ये हमारे इनर कैंथस से लेकर के अंदर की तरफ जो हमारी सॉफ्ट पैलेट है वहां तक होते हैं। ये भी आग्नेय मर्म है। 19 सद्य प्राण हर मर्मों में से ये मर्म है और 4 अंगुल प्रमाण का होता है। उंगुल प्रमाण सुश्रुत के समय में मेजरमेंट की टेक्निक थी। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ मर्म बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ स्मॉल साइज होते हैं। तो ये बिग साइज मर्म है। अधिपति स्मॉल साइज था, सीमंत बड़ा था, विदुर छोटा था, शंख भी लगभग छोटा था, अपांग भी छोटा था, स्तपनी भी छोटा था, श्रृंगाटक बड़े साइज का मर्म है। आप यूं समझिए 4 अंगुल प्रमाण का शास्त्र में इसे बताया गया है। श्रृंगाटक मर्म जो है वो ये जो आपने देखा पयस्विनी, शंखिनी, उषा, गंधेरी, एड़ा, पिंगला, इन सारी नाड़ियों का यहाँ जंक्शन होता है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ से सुषुम्ना नाम की नाड़ी भी गुजरती है। ये जंक्शन पॉइंट है ये। तो श्रृंगाटक मर्म के बारे में कहा गया है कि ये 4 श्रृंगाटक शब्द देखिए आप, शब्दों का चयन देखिए उस आचार्यों ने, उस भगवान ने, उस गॉड ने, उस भोलेनाथ ने। ये सारा मर्म विद्या उन्हीं का दिया हुआ है। ये मेरा नहीं है, ये आपका भी नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ का ज्ञान है। इसीलिए इसको बांट करके हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हमारी ड्यूटी है हम उसके माध्यम बने, हम नहीं बनते तो कोई और बनता। तो ये 4 मर्म हैं। ये हमारे अब अंदर भी है, सॉफ्ट पैलेट में भी है, बाहर भी है, बड़े साइज के 3 डायमेंशनली है ये। तो कैसे स्टिमुलेट करेंगे इसको? तो इसके लिए आप इनर कैंथर पर ऐसे अपनी तर्जनी और अपनी इस प्रकार से अंगूठा लगाइए और प्रेस कीजिए अंदर की तरफ। प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए। ये श्रृंगाटक मर्म है। 4 सेंसेस। श्रृंगाटक का अर्थ होता है सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट बोलते हैं इसको। आपने व्रत में अभी अभी सावन के महीने में या बहुत सारे लोग व्रत करते हैं तो सिंघाड़ा खाते हैं हम लोग। सिंघाड़ा में देखेंगे 4 कॉर्नर्स होते हैं।
तो ये 4 कॉर्नर्स हमारे इस वर्ब पे भी हैं। जी हाँ, ये वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 4 जो कॉर्नर्स हैं, ये एक तो स्मेल के सेंसेस, एक तो टेक्टाइल सेंसेस, एक तो ऑडिटरी सेंसेस, और एक जो हमारा होता है यानी सुनना, देखना, सूंघना और चखना, जो टेस्ट का सेंसेस है, वो चारों सेंस इस वर्ब से कंट्रोल होते हैं। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये कोविड का संक्रमण इधर ही से गया था, नाक से अंदर फेफड़े में, बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव थे, लेकिन उनको कोविड का इन्फेक्शन कहीं भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखे, वो एसिम्टोमेटिक थे, लेकिन उनका चखना, उनका देखना, उनका सूंघना और उनका सुनना ये प्रभावित हुआ था। तो वो श्रृंगाटक मर्म के प्रभावित होने से हुआ था। यानी अगर आप अपने श्रृंगाटक मर्म को जागृत रखते हैं तो आपका सुनना सही रहेगा, आपका देखना सही रहेगा, आपका चखना सही रहेगा और आपका सुनना सही रहेगा। तो 4 इसके मेन जो है फीचर्स है। लेकिन ये आग्नेय मर्म है, तो यहाँ पर अगर आपने आघात दे दिया या यहाँ से आपने इंजरी दे दी तो पेशेंट विल डाई इमीडिएटली। इसीलिए हम इसे बहुत पावरफुल कहते हैं। तो अगर अधिपति मोदी है, मोदी जी हैं, तो ये श्रृंगाटक अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ये मान सकते हैं, क्योंकि नासा ही सिरसों द्वारा दिल्ली में जाने का रास्ता अधिपति तक वो श्रृंगाटक से ही होके जाता है। जी हाँ, लेकिन इसके ऊपर बैठा है अधिपति। तो श्रृंगाटक मर्म का ख्याल हम करते हैं, आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ जो नस्य कर्म करते हैं वो हमारे श्रृंगाटक मर्म से ही काम करते हैं। इसका प्रभाव हमारे केवल नासिका तक ही नहीं होता है, पूरे साइनसेस, पूरे सिर, पूरे हमारे स्कैल्प तक जाता है, क्योंकि यहाँ से औषधि द्रव्य जो भी हम देते हैं वो सिर तक पहुंचती है। इसीलिए नासा ही शीर्षों द्वारा कहा गया है। और इसको स्टिमुलेट करने का तरीका ये इस प्रकार से है। तो ये 4 मर्म होते हैं। ये भी शिरा मर्म है, ये सद्य प्राणहर मर्म है। ध्यान रखिएगा, जितने भी मैंने आग्नेय मर्म बताए उन पर कोई भी अग्नि यानी कि पित्त प्रधान उष्ण औषधियों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिर का लास्ट मर्म बता के मैं इस सेशन को समाप्त करूंगा। इसका नाम है फणा। ये एलानेजाई पे होता है, ये नाक के नीचे। ये अगर आपकी दिल्ली है, यहाँ पे राजा, कैबिनेट मिनिस्टर, मोदी जी, इधर दूरदर्शन, सारे ऑफिस हैं यहाँ पे हमारे, इधर डोभाल साहब, इधर केजरीवाल साहब बैठे हैं, तो प्रोटेक्शन भी तो नीडेड है ना इन सबको। कोई भी चला जाएगा क्या इनके पास? नहीं जाएगा। तो उस परम पिता परमेश्वर ने 2 गार्ड भी दिए हैं। देखिए नाम, देखिए फणा, ऐसा सांप फन खोल के खड़ा है इसे, आओ बेटा तुम इधर आओगे, इधर से तुम्हें अगर पॉजिटिव इंटेंशन से नहीं आ रहे हो तो आई विल स्टॉप यू, और इफ यू आर कमिंग थ्रू द पॉजिटिव इंटेंशन से आ रहे हो तो एंट्री अलाउ करेंगे, नेगेटिव इंटेंशन से आओगे तो तुम्हें घुसने नहीं देंगे। उसको कहते हैं फणा। क्योंकि ये जल महाभूत प्रधान मर्म है, इसे वैकल्यकर मर्म कहते हैं। और हमारे सुश्रुत संहिता में फणा को कहा गया है कि इस पर आघात से गंध ज्ञान चला जाता है। तो निश्चित रूप से रिवर्स फार्माकोलॉजी में अगर हम सोचें तो ये गंध ज्ञान को इंप्रूव करता है। तो इसको करने का भी तरीका है, स्मॉल फिंगर लगाइए यहाँ पे, करिए करिए, 1 2 3 4 5, ये फणा मर्म हो गया। नहीं तो फणा मर्म हो गया, यानी कि अब आपके शरीर में नेगेटिविटी जाएगी ही नहीं, आपके शरीर में नकारात्मक इंफेक्शन जाएगा ही नहीं। और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ आचार्यों ने प्रति मर्स नस्य को प्रतिदिन लेने के लिए कहा है, और प्रति मर्स नस्य हम कहाँ लेते हैं? फणा मर्म से ही लेते हैं। फणा मर्म पर ही हम ड्रॉप डालते हैं। यानी और इसको कहा है कभी भी ले लो, घूमने जाओ तब ले लो, बाहर जा रहे हो तब ले लो, नहा रहे हो उससे पहले ले लो, खाना खाने से पहले ले लो। प्रतिमर्श नस्य को तो प्रतिदिन किसी भी समय लिया जा सकता है। तो ये कोविड में भी हमारे आयुष मिनिस्ट्री ने जो प्रोटोकॉल दिया था उसमें इस मर्म को बड़ा इंपॉर्टेंट माना था, और ये जो प्रतिमर्श नस्य है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना। तो इस प्रकार से आपको मैंने सिर के सारे मर्म कंप्लीट किए। मैं रिपीट करता हूँ, अधिपति 1, 5 सीमन, 2 विधुर, 2 शंख, 2 अपांग, 1 स्तब्धि, 4 श्रृंगाटक और 2 फणा। क्लियर? आई होप दैट आपने इसको समझ में आ गया होगा। आई हूँ, मुझे किसी का सवाल है यहाँ पे आ गया? 1 मिनट, कुछ और सवाल लिखा है आपने, एक बार दोबारा देखिए, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से हूँ तो शायद मैं वो आपका चैट आया था और चला गया, इंस्टेंटली आया होगा और चला गया। अगर आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में मैं आपको मर्म प्राणासन का लाइव डेमो दिखाता हूँ। चलिए अभी दिखाते हैं आपको हम मर्म प्राणासन कैसे करते हैं। छाए रखा है, चलिए जी, ऐसे अपना 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 अंगूठा इधर रखिए विधुर पे, चलिए रखिए। फाइनल है सर, विल यू
will you please show the stimulation of Sringatak? Okay, okay. You just this way. यहाँ देखिए, ये देखिए, ये Sringatak 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? ओके जी, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, विच वर्मा शुड बी, एक मिनट पर चला गया आपका चैट ना, ये मैं अपने Sir, आईफोन which से Verma is useful to means useful for Khalitya and Palitya, sir? Oh, Khalitya and Palitya. Yes, very good question. For Khalitya and Palitya, Adhipati and Simanta Marma are very useful, as we are doing these Marma. Nurturing and nourishing of Marma is also a very important part. And when we are doing the Sirovasti, already these Marma get nurtured and nourished. And if you are stimulating your Adhipati and Simanta Marma regularly, I assure you that मैं ये नहीं कह सकता कि परमानेंट बांटने से तो आपके बाल आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप जो है बाल झड़ने बंद हो जाएंगे आपके, और आपका जो बाल सफेद होने कम हो जाएंगे। अब लेकिन मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगर आपकी उम्र 80 साल है तो आपके बाल काले रहेंगे। जेनेटिक प्रॉब्लम्स तो होगी, पर आप यू कैन डिले इट। जी, और कोई सवाल है तो पूछिए सर। इन हाइपरटेंशन नॉन आज्ञा आग्नेय मर्मा, अभी मैडम जी बोल दीजिए जरा, वो एकदम चला जाता है जी। In hypertension, non-Agneya Marma should be stimulated or just Adhipati? हाँ, इन हाइपरटेंशन यू हैव टू अवॉइड अधिपति। यू कैन स्टिमुलेट अदर मर्मा लाइक तल हृदय। दिस इज द तल हृदय मर्मा। सो बट ये पॉसिबल नहीं था, जो मैं 20 घंटे में सिखाता हूँ उसको मैं 1 घंटे में कैसे बताऊं आपको, तो माफ कीजिएगा। मैं आपको लास्ट में एक चीज कराना चाह रहा था, तो अगर आप 2 मिनट समय दें तो मैं आपको एक प्राणासन करके दिखाता हूँ ना। सर प्लीज स्टिमुलेट। अच्छा, क्वेश्चन है क्या? पूछिए पूछिए। एक्चुअली मेरी ये विंडो बहुत छोटा है तो मुझे वो चैट्स नहीं दिख रहे हैं जी। Rajata ma'am, yes. Sir, please stimulate the Adhipati Marma again. ओके, दिस इज द जस्ट देखिए, राजा है ना, तो राजा के पास में पंच महाभूत लेके जाएंगे। 5 महाभूत है। देखिए, ये ठेंगा, ठेंगा बोले तो आग, ठेंगा बोले तो अग्नि। ये इधर जाना है जल, जिधर अंगूठी पहना ये पृथ्वी, ये देखो आकाश, और ये वायु। तो 5 उंगलियां ऐसे बनाने का। सर विल यू प्लीज शेयर द इंफॉर्मेशन टू ज्वाइन दिस। ये देखो, यहाँ से स्टिमुलेट करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। देखिए, मेरा नाम वैद्य नवीन जोशी है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है NAVINJOSHI, उस पे आप जा सकते हैं। आप आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें, 97608 97608 4688। दोबारा बोलता हूं, 97608 4688। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सीखना है। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, सीखते हैं, जाते हैं। मैं नाड़ी भी सिखाता हूँ, मर्म भी सिखाता हूँ, और पंचकर्म तो मेरा विषय ही है। उस पर तो पूरा जीवन ही बिताया है मैंने। और कोई सवाल है तो आप पूछिए। मैं एक आपको लास्ट में ना एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा था। 2 मिनट का आप समय दीजिए। आप अपने विदुर पे अंगूठा रखिए, आप अपने शंख पर अपनी तर्जनी रखिए, आप मध्यमा अपांग पे रखिए, अनामिका को श्रृंगाटक पे रखिए, और कनिष्ठिका को इस प्रकार से आप यहाँ पे रखिए, फणा पे। चलिए ऐसे कीजिए, अभी ऐसे कीजिए, पहले बाद में बताएंगे आपको। कैन यू टेल सर कॉन्टैक्ट नंबर अगेन? 979608 979608 फिर से लिखिए, 9760846878। और ऐसे बनाइए जरा, विदुर पे लगाइए अंगूठा। ये देखिए विदुर, फिर ये शंख, फिर ये अपांग, फिर ये हमारा श्रृंगाटक और फणा। ऐसा कीजिए, विदुर, शंख, अपांग, श्रृंगाटक, फणा। अब जीभ को ऊपर ले जाइए, ऊपर ऊपर सॉफ्ट पैलेट पे लगाइए, श्रृंगाटक पे ऐसे जोड़िए ऊपर। सांस अंदर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, और सांस बाहर कीजिए, भ्रमर के समान गुंजन कीजिए। दोबारा कीजिए।
और आप दोबारा कीजिए। दोनों हाथों को स्पर्श कीजिए। ये भी आपका मर्म स्थान है। ये तल हृदय है, ये कूर्च है और ये कूर्च सिर है। चलिए इस पे स्पर्श कीजिए और अपने आप को फील कीजिए कैसा लगा आपको। आई थिंक दैट आपको सारे मर्म का निचोड़ आनंद यहाँ आ गया होगा जो आपने सीखा। तो इस प्रकार से हमारा 1 घंटा पूरा हुआ और हमने अपने समय पे आपका ये सत्र पूर्ण कर लिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रण दिया, जिन्होंने मुझे इस विद्या को प्रचार करने के लिए मौका दिया। आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जो लोग यहाँ पर इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, मॉडरेट कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, उन सबको प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको इस सेशन में शायद आपको मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही मैंने अपने सेशंस को प्रेजेंट किया होगा। मैंने आपको कोई पीपीटी नहीं दिखाई, मैंने सब कुछ आपको लाइव दिखाया। और यही मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग है, यही मेरा स्टाइल ऑफ पढ़ाना है, सिखाना है। इसीलिए आज 25 से 30 हजार लोगों ने डायरेक्ट मुझसे ऑन डॉक्यूमेंट सीखा है नाड़ी और मर्म, और लाखों लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर देख करके इस ज्ञान को लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे आमंत्रण देने के लिए। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, थैंक यू टू ऑल। कोई सवाल है तो आप बाद में भी मुझसे मेरे नंबर से पूछ सकते हैं। जी बताइए मैम। थैंक यू। यूट्यूब चैनल का नाम आयुष दर्पण है। आयुष मिनिस्ट्री है ना, तो आयुष उसमें से निकाल लीजिए और दर्पण मिरर। जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनी हो तो बाद में बनी, पर आयुष दर्पण उससे पहले से बना हुआ है। तो आयुष दर्पण के यूट्यूब चैनल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। नवीन जोशी का यूट्यूब चैनल देख लीजिएगा, मेरा नाम नवीन है, NAVIN, JOSHI। उसके आगे डॉक्टर लगा दीजिएगा, उसको आप ढूंढ लीजिए, मैं वहां मिल जाऊंगा आपको। फेसबुक पे मिल जाऊंगा, सभी जगह मिल जाऊंगा। आप ढूंढने वाले की जरूरत है। सिग्निफिकेंस ऑफ आवर्त है ना, उत्तक्षेप मर्मा। आवर्त मर्म मैंने नहीं बताया आपको, ये हमारे आईब्रो के पेट पे होता है। तो ये हम लोग इसको मानस रोगों में प्रयोग करते हैं। उत्तक्षेप शंख से ऊपर 2 अंगुल प्रमाण ऊपर होता है, इसका प्रयोग गंध ज्ञान के लिए करते हैं। और ये मर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये विषय लग्न मर्म है। मैंने बताया कि मैं 107 मर्म सिखाता हूँ और मुझे मर्म और नाड़ी ऐसा याद है कि मैं एक्सटेम्पोर आपको 12 घंटे तक इस पे पूरा मर्म आपको पढ़ा सकता हूँ। मेरे ऑफलाइन सेशंस भी होते हैं सुबह से शाम तक, और मुझे कोई पीपीटी की जरूरत नहीं होती, किसी किताब की जरूरत नहीं होती, किसी नोट्स की जरूरत नहीं होती। ये सब मेरे अंदर समाहित हैं। जी हाँ, मैं इस विषय को, जिसको हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स क्लास में जब मर्म निर्देश सारी अध्याय पढ़ते थे तो भागते थे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारे टीचर्स यदि विषय को सही तरीके से पढ़ाएं, सही तरीके से समझाएं, तो आज यही आयुर्वेद की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण और प्रायोगिक हो सकती है। इसका मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके एग्जाम्पल दिखाया। मैंने आपको कोई पीपीटी नहीं दिखाई, मैंने कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जिसको कोई भी व्यक्ति जो कितना भी पढ़ा हुआ हो, कोई एनाटॉमी के बहुत ज्यादा ऐसे क्लिष्ट वर्ड्स का यूज नहीं किया, और मैंने आपको आसानी से ये सिर के मर्म समझा दिया। यकीन मानिए कि मैं आपको ऐसा ही 107 मर्म सिखाता हूँ और मैं 20 दिनों में नाड़ी सिखाता हूँ, और मेरे पास नाड़ी सीखने वाले बाहर बैठे हुए हैं अभी। जी हाँ, ये वैद्य भी हैं, ये टीचर्स भी हैं, ये गुरु भी हैं। तो मैं आप सभी से विनती करता हूँ, हमारे शिक्षक महोदयों को, ये पढ़ाने को इंटरेस्टिंग बनाइए, पढ़ाने को बहुत प्रायोगिक बनाइए। स्टूडेंट्स को ये सिखाइए कि कैसे वो इस विद्या को लेकर के अपने धनार्जन कर सकें, कैसे वो अपने मरीजों में इसका लाभ दे सकें। यही हमारा अनुरोध है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब मुझसे बहुत ज्ञानी होंगे, बहुत विद्वान होंगे, बहुत वरिष्ठ होंगे। मैं ज्यादा, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, 25-26 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि हम अगर अच्छे से कम्युनिकेट करें, अच्छे से पढ़ाएं, तो ये बहुत अच्छा मजा आता है। अब बहुत सारे सवाल हैं आपके, एलर्जिक पता नहीं क्या क्या इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि और भी यहाँ पर वक्ता होंगे, तो और मुझे भी यहाँ पर अभी एलर्जी बहुत सारे कंडीशन। पेशेंट्स यस वेट सर। कर रहे हैं। ओके। एलर्जिक कंडीशंस, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, व्हिच हाँ, मर्मा एलर्जिक शुड बी कंडीशंस सिमुलेटेड? में, साइनसाइटिस में, राइनाइटिस में आप जो है श्रृंगाटक और फणाबंद रोज कीजिए, रोज करना है ये। और एक चीज मैं भूल गया बताना, खर्राटे, स्नोरिंग, बहुत सारे लोग खर्राटे की प्रॉब्लम है। मैं अभी हैदराबाद से देहरादून आ रहा था फ्लाइट में,
एक व्यक्ति ऐसा पीछे लगा जैसे कि फ्लाइट जो है उसमें वो होने लग गया है, हिलने लग गई, तो पता चला वो बंदा जो है पीछे खर्राटा ले रहा है, एकदम तेज तेज खर्राटा ले रहा है। हमें लगा ये क्या हो गया भाई, ऐसा क्या होने लगा। तो फिर उसका तुरंत हमने ये फणामर्म किया, तो इंस्टेंट रिजल्ट है फणामर्म के, इंस्टेंट रिजल्ट है। हाँ, एक और चीज, इपिलेप्टिक सीजर जिसको आ जाते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ जाता है, पता है आपको जूता सुंघाते हैं, अरे जूता सुंघाने से कुछ नहीं होता है, वो जूता का जो स्मेल है वो जाके उसके जो ऑल्फैक्टरी जो लोब है वहां पे जाके स्मेल उसकी इफेक्ट करती है। आप सीधा उसका फटाफट कीजिए ना, उसको आप एकदम तुरंत सही कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ हम लोग नश्य में जो धमापन नश्य देते हैं, धूम नश्य देते हैं, वो सब इसी फटाफट के थ्रू इफेक्टिव होता है। थैंक यू। और बताइए मैम। तो आप तो कोई प्रश्न नहीं है? मेरा नंबर आपके पास है, थैंक आपको मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9760846878। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मर्म से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आई विल गिव यू द आंसर। और मैं आपको अगर सीखने की रुचि होगी तो मैं आपको सिखाऊंगा जी। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर योर नी जॉइंट पेन के लिए कोई मर्म है? हेलो, नी जॉइंट पेन के लिए कोई मर्म है? नी ज्वाइंट के लिए जानू मर्म है सर, लेकिन अभी जानू मर्म आपको कैसे दिखाऊं मैं, उसके लिए पूरा जानू मर्म है सर, आप लिख लीजिए जानू मर्म। मैं तेरा जानू हूं ना, तो जानू बड़ा इंपॉर्टेंट मर्म है। हाँ, नी ज्वाइंट पेन के लिए कराते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वैसे, लेकिन ये कैमरा कौन पकड़ेगा, एक दिक्कत ये है। चलिए उसको बाद में कभी करेंगे, है ना जी। मेरी इच्छा तो है कि मैं आपको 107 मर्म सिखा दूं यहाँ पे, पर क्या करें, 1 घंटे का ही समय है ना। जी, ठीक है। okay. Thank you, sir, for your वेल deep and brief practical and clinical guidance on Marma Chikitsa. Sir has practically demonstrated Marma stimulation techniques and said about their indications and contraindications related to Shirogat Marma. Now I request Chairperson Dr. Sudhir Kandekar, sir, to share their reviews regarding this session. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सर नमस्कार, नवीन जोशी नमस्कार सर सर। नमस्कार। आपका अभी जो ज्ञान भरा भाषण सुना या क्लास सुना, बहुत ही बढ़िया और ज्ञान विद्वत्तापूर्ण था। आपने जोशी सर ने जो मर्म के बारे में बताया वो पूरा के पूरा सभी को समझ लेना चाहिए और उनसे कुछ मर्म के बारे में सीख लेना चाहिए। हेलो, सुनाई देता जी है? सर, जी सर, सुन रहे हैं सर, जी सर, हाँ धन्यवाद सर, सर। सर नमस्कार। जी सर, एक्चुअली धन्यवाद सर। हाँ सर, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, अकोला में रहता हूँ। अकोला आयुर्वेद कॉलेज का एक एचओडी और प्रिंसिपल हूँ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में हूँ। मैं लास्ट 20 ईयर से मैं मर्म चिकित्सा एक एप्लीकेशन कर रहा हूँ वाह। और हजारों पेशेंट्स यहाँ मैंने दुरुस्त किए हैं जी जी और सर। अप्लाई किए, सक्सेसफुली अप्लाई कर रहा हूँ। और इंस्टेंट आयुर्वेद ये जो संकल्पना है, इस संकल्पना का मैं थोड़ा सा उस रास्ते पे जा रहा हूँ। मैं बच्चे को बताता हूँ कि आयुर्वेद भी इंस्टेंट रिजल्ट कैसा देता है। जब ये आयुर्वेद कॉलेज के ओपीडी में ही मर्म चिकित्सा है, इसलिए हमारे कॉलेज के सभी स्टूडेंट ये देखते हैं कि मर्म चिकित्सा के द्वारा हम पेशेंट को कैसा त्वरित रिजल्ट देते हैं और उनका जो दुख कैसा दूर करते हैं। और इस वजह से हमारे स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस निर्माण होता है कि आयुर्वेद के विषय में। हेलो, जी जी सर, सुन रहे हैं सर, बहुत बहुत जी हाँ सर। हाँ, आयुर्वेद के विषय में हम कैसा उसमें रुचि निर्माण करें। एक्चुअली जब 20 साल के पहले जब मैंने मर्म चिकित्सा की शुरुआत की या पहले कोशिश की, तब मैंने जब पूछा, बहुत सारे लोगों को पूछा कि मर्म चिकित्सा कैसी किया जाए, तो किसी के पास इसका आंसर नहीं था। केवल मैंने नाम सुना था सुनील, आदरणीय डॉक्टर सुनील जोशी सर का, जो हरिद्वार में है।
और जो वो केरल मेरे में गुरु हैं सर, है सर, जो वो मेरे गुरु हैं सर। यस सर, क्योंकि आपने जो बताया है और जो आपने किया है वो सब सुनील जोशी, आदरणीय सुनील जोशी की छवि मुझे याद आ रही थी वहां पे, क्योंकि मैं भी उनसे मिला हूँ और उनसे डिस्कशन या उनके पास भी मैं 5 दिन रहा हूँ। मेरी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, और वहां भी हरिद्वार में भी मुझे आपका नाम सुनाई दिया था। मुझे आपसे मिलने की उम्मीद है, देखिए कैसा मिलेंगे। मिलेंगे सर, सर मिलेंगे सर, नमस्कार। कोई बात नहीं सर, अकोला आ बिल्कुल जाएंगे ना सर, आपके पास, अकोला आ बिल्कुल जाएंगे तो। बिल्कुल आइए सर, बिल्कुल सर, आपका तो जी सर, स्वागत है। जी सर। रोज के 50 या 100 पेशेंट जब स्टूडेंट देखते हैं मर्म चिकित्सा के ओपीडी में, जी सर। और वो रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, तो हम स्टूडेंट के चेहरे पे जो खुशी देखते हैं वो भी अविस्मरणीय लगती है। हम सभी आयुर्वेदाचार्य या आयुर्वेद वाचस्पति सभी हमारे महानुभाव लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा मर्म चिकित्सा के ऊपर ध्यान रखिए। मैंने एक मोडेलिटी इन्वेंट बैठिए बैठिए, सारी ठीक है, ठीक है। सर आप म्यूट हो गए हैं, शायद आवाज नहीं आ रही है, तो अगर आप मुझे विदा देना चाहें तो विदा लेता हूं मैं आप सभी से। हर्षाली जी। हाँ, I request Dr. Harshali Murade ma'am to share her reviews. Please ma'am, Harshali ma'am. यस, हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, बढ़िया आ रही है मैम। हाँ, हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, ये डिस्कनेक्ट हुआ था। हेलो। Yes, sir, हेलो। you are audible, sir. यस यस मैडम। मैंने जो एक मोडेलिटी इसमें एस्टेब्लिश की है उसका नाम स्पाइन एंड मर्म रेमेडिएशन टेक्निक, इस नाम से मैंने ये मोडेलिटी एस्टेब्लिश की है मर्म चिकित्सा में। गए 20 साल से ये कर रहा हूं, मगर मेरी जो पद्धत है उसमें मैं मर्म स्थान पे एक तो मसाज भी कर सकता हूँ, प्रेशर भी दे सकता हूँ, निडलिंग या कर सकता हूँ, या मैं मैनिपुलेशन भी करता हूँ। हर कौन सा मर्म कौन से या तरह से अप्लाई करना है उसको उस पेशेंट की कंडीशन से अगर निर्णय लिया तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, ये मुझे दिखा है। मैं सबको ये सूचित करना चाहता हूं कि मर्म स्थान ये प्राणिक स्थान है, इसलिए इनको मर्म स्थान को अगर आप चिकित्सा करेंगे तो थोड़ी सी प्रिसाइजली या केयरफुली करना चाहिए, और इसके लिए आप किसी वाइज गुरुज को आप उनके उनके साथ रहकर वो शिक्षा लीजिए, यही मेरा मानना है या कहना है। मैं जोशी सर को आदरपूर्वक नमन करता हूं, और मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे एटीए ने और उनके सभी लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सबका आभारी हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Dr. Harshali ma'am, please share your reviews. यस मैम, गुड हाँ. आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर नवीन जोशी सर फॉर दिस informative session. This session has very practical and different approach towards marma. Usually we didn't get that, but this type of approach.
And also thank you ATA team for giving me this opportunity. Thank you, ma'am, and thank you, sir. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, our guest speaker, Dr. Naveen Joshi, sir, Dr. Kandekar, sir, and Dr. Harshali, ma'am. Now I hand over to Dr. Sonia, ma'am. Ma'am. For next session. Yes, Now thank you so much. Okay. Yes, thank you so much, Dr. Naveen Joshi, sir, for giving us such insightful session on Marma therapy. It has been very much informative and practical sessions, and especially for giving your valuable time. Thank you so much, chairperson and co-chairperson. Thank you so much, Dr. Prajakta Borke ma'am and Dr. Rahul Arsude sir, for nicely conducting the sessions.